first theorem, that is a tree with n vertices has n minus 1 edges. Okay, if you make any tree, you will understand what do we mean by this. If we make any tree, so if tree is having n vertices, then it has n minus 1 edges, मतलब एक कम एज होगा. ये हमारे पास में एक रूट नोड है, इसकी ये दो ब्रांचेस, दो एजेस, यहाँ से ये एक, ये दो, यहाँ से एक, ये दो. ओके, सपोज दिस इज नोड ए, रूट नोड, दिस इज बी, दिस इज सी, this is D, E, F, G. Now count how many vertices are there, how many nodes are there. This is C. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 vertices or 7 nodes. Now let's count the number of edges. 7 nodes, 7 vertices. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many edges? 6 edges. So is the formula correct? N number of vertices and n minus 1 edges. That is 7 vertices, 7 minus 1, 6 edges. कोई और बनाते हैं हम tree. This is also a tree. This is node 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many vertices? 6 vertices. How many edges? 1, 2, 3, 4, 5. 5 edges. Okay. So this theorem is approved theorem. So did you get? क्वेश्चन क्या है? थ्योरम क्या प्रूव करनी है कि अगर n वर्टाइसेस है तो n माइनस 1 एजेस होंगे उस ग्राफ के. तो हर ग्राफ, जो भी ग्राफ है, चाहे वो बाइनरी, जो भी ट्री है, दिस इज ट्री, जो भी ट्री है उसके अगर n वर्टाइसेस है तो n माइनस 1 एजेस होंगे, चाहे वो ट्री बाइनरी ट्री हो, चाहे वो नॉर्मल ट्री हो. ओके, सो दिस ट्री इज बाइनरी ट्री, ये वाली बाइनरी ट्री है. दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री, दिस इज अ ट्री. सो द कंसेप्ट इज ट्रू फॉर ट्री. तो अगर n वर्टाइसेस है तो n माइनस 1 एजेस होंगे, एक कम एजेस होंगे. Now let's begin. We shall prove the theorem by induction. Theorem of induction. Induction का method क्या होता है? Let us prove it for. Let us start it with the assumption, hypothesis. Assumption से शुरू करना है, hypothesis से शुरू करना है. That it is true for 1. Then we say it is true for k. Then we need to prove it for k plus 1th value. Let's see the induction method first of all. So we prove this theorem by the induction for the number of the vertices. So theorem is true for trees. Now let's say it is, we say we'll write the assumption or the hypothesis. पहला हम assumption या hypothesis लेंगे that the theorem is true for n is equal to 1. Assume that theorem is true for n is equal to 1. n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है मतलब कितने वर्टाइसेस है? 1 वर्टेक्स है. तो नंबर ऑफ द एजेस कितने हुए? 0 हुए. अगर नंबर ऑफ द वर्टाइसेस 1 होंगे, n की वैल्यू 1 होगी, तो नंबर ऑफ द एजेस कितने होने चाहिए? 0. तो ये मेरे पास में एक नोड है. दिस इज 1 वर्टेक्स, 1 नोड. ठीक है, एक ही है सिंगल, n इक्वल टू 1. इसका कोई एज नहीं है, कोई भी एज नहीं है, सिंपल सिंगल आइसोलेटेड है. दिस इज स्टिल अ ट्री. ये ट्री है with 1 node only. So the theorem is true. For n is equal to 1, the number of the edges is 0. तो हम assume करके लेते हैं. सबसे पहले हमने क्या
की अजम्पशन, इसको अज्यूम बोलते हैं या फिर हाइपोथेसिस बोलते हैं। अज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए ये थ्योरम ट्रू है। ओके, दिस इज स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप इज we say that if it is true for n is equal to 1, then it is also true for n is equal to k। n is equal to k के लिए भी ये थ्योरम ट्रू है। now what is the value of k? what is the value of k? it is any value, any positive value which is greater than equal to 1। k की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। that means if the number of the vertices are k, then the number of the edges will be k minus 1। so we say that the theorem is true। so first is assume that it is true for n is equal to 1, then second is if it is true for n is equal to 1, then we say that it is also true for n is equal to k, where k is any value which is greater than equal to 1। तो अगर k नंबर ऑफ वर्टाइसेस है तो नंबर ऑफ द एजेस कितना होगा? k माइनस 1। ना थर्ड स्टेप, इंडक्शन का मेथड बता रही हूँ। थर्ड स्टेप, देन वी नीड टू प्रूव। थर्ड स्टेप में क्या लिखना है? टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1। वी नीड टू प्रूव इट फॉर PROVE, प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। okay, now it means that we need to prove it for n equal to k plus 1। so suppose अगर n की वैल्यू k plus 1 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ द एजेस कितने होंगे? k plus 1 minus 1, k plus 1 minus 1 which is equal to k। so it means that we need to prove that for n is equal to k minus 1 vertices, the number of the edges will be k। edges कितने होंगे? k, और vertices कितने होंगे? k plus 1, क्योंकि vertices से एक कम edge होंगे। so ये हमको थर्ड स्टेप 2 प्रूव करना है। अब ये थर्ड स्टेप प्रूव करने के लिए हमको ये फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप की हेल्प लेनी है। तो सबसे पहले इंडक्शन थ्योरम क्या है फिर से बताती हूँ। इंडक्शन थ्योरम में 3 स्टेप रहते हैं। फर्स्ट स्टेप रहता है अजम्पशन दैट द स्टेटमेंट विच इज़ गिवन टू यू इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। तो n की वैल्यू क्या डाली? हमने 1 डाली। अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल रही हूँ तो नंबर ऑफ द एजेस कितने होंगे? n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अजम्पशन, दिस इज हाइपोथेसिस, दिस इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, it is true for n is equal to 1, then we say that it is also true for n is equal to k। तो n की वैल्यू कितनी डाली? k डाली, तो k माइनस 1 के लिए ये ट्रू है। थर्ड स्टेप टू प्रूव, इफ वी आर एबल टू प्रूव दैट n इज इक्वल टू k प्लस 1, टू प्रूव दैट n इज इक्वल टू k प्लस 1, अगर n की वैल्यू k प्लस 1 है तो नंबर ऑफ द एजेस कितने होंगे? k होंगे। अगर हम ये प्रूव करने में सक्षम रहे, इफ वी आर एबल टू प्रूव दिस थर्ड स्टेप, देन वी से दैट द थ्योरम इज ट्रू। तो थर्ड स्टेप को प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है? फॉर टू प्रूव द थर्ड स्टेप वी नीड टू प्रूव दिस थ्योरम बाय इंडक्शन। तो फर्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस और assumption, second step is based on the first step, since it is true for n is equal to 1, then we say that it is also true for n is equal to k, where the value of k is always greater than equal to 1। तो ये दोनों assumption है, ये दोनों assumption है, हाइपोथेसिस है, ये सही है ऐसा लेकर हम चल रहे हैं। अगर हम ये प्रूव कर सकें कि थर्ड स्टेप में कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए एज नंबर ऑफ एजेस k है, तो हमारी थ्योरम सही होगी, तो हमारा assumption भी सही है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा प्रूव कर पाए कि n इज इक्वल टू k प्लस 1, देन द नंबर ऑफ द एजेस विल बी k, देन वी से दैट इट इज ट्रू। ओके, so now let's begin with this। so the theorem is true for trees, so clearly the theorem is true for 1 or 2 vertices। देखो ये 1 या फिर इसमें 2 vertices, नंबर ऑफ vertices 2 ले लेते हैं। अगर नंबर ऑफ vertices 2 लेते हैं तो नंबर ऑफ द एजेस कितने आएंगे?
इफ नंबर ऑफ वर्टाइसेस इज इक्वल टू 1 तो नंबर ऑफ द एजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ एजेस विल बी 0, ठीक है। अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस 2 होंगे तो एजेस कितने होंगे, 1, एक कम होगा ना, हाँ 1। तो ये क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, क्लियरली द थ्योरम इज ट्रू फॉर 1 और 2 वर्टाइसेस। नाउ अज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ट्रीज विद फ्यूअर देन n वर्टाइसेस। फ्यूअर देन n वर्टाइसेस के लिए अज्यूम करना है कि ये ट्रू है। फ्यूअर देन n मीन्स दैट n इज इक्वल टू k, एनी वैल्यू विच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, it is true. Now let us consider a tree T with n vertices. Let Ek be any edge in the T between the vertices Vi and Vj. चलो हम एक ट्री ड्रॉ करते हैं। चलो मैंने ये ट्री ड्रॉ की। इस ट्री में कितने वर्टाइसेस हैं, सपोज देयर आर n वर्टाइसेस इन दिस ट्री। n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 4, 5, 6, इस केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n की वैल्यू 7 है। So we have not mentioned it particularly for 7. It is true for any value of n. So let us consider a tree T with n vertices. ये n vertices की एक tree है. Now let Ek be any edge in the T tree between the Vi and Vj. चलो ये Vi है और ये Vj है, उसके बीच में कोई भी एक edge हो गया। ये वाले edge की हम बात कर रहे हैं। ये एक Vi नोड हो गया, एक Vj नोड हो गया, ओके। ये Vi और Vj के बीच में कोई भी एक एज है। Now the theorem says, according to theorem, the Ek is the only path between Vi and Vj. Vi और Vj के बीच में सिर्फ ये एक ओनली पाथ है रीचेबल। मतलब अगर हमको इस C से लेकर G तक पहुंचना होगा तो ये एक ही पाथ है। G पर कोई और पाथ से पहुंच सकते हैं क्या, नहीं। अगर सपोज मुझे B से लेकर G पे पहुंचना है तो मुझे A पे जाना पड़ेगा, फिर C पे जाना पड़ेगा और फिर G पे जाना पड़ेगा। अगर मुझे F से G पे जाना है तो F से मुझे C पे जाना पड़ेगा, फिर G पे जाना पड़ेगा। अगर मैं E पे हूँ, E से G पे जाना तो E से B पे जाना है, B से A पे, A से C पे और C से G पे। सो दिस इज द ओनली पाथ विच इज़ देयर बिटवीन C एंड G। दो नोड के बीच में सिर्फ एक ही पाथ है, चाहे वो नोड का नाम Vi Vj हो, चाहे वो नोड का नाम C और G हो। कोई भी दो नोड के बीच में एक ही पाथ है। ये एक ही पाथ रिस्पॉन्सिबल है, एक ही एज रिस्पॉन्सिबल है दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए। हेंस द डिलीशन ऑफ Ek, अगर मैं इसका नाम Ek बोल रही हूँ, ये एज Ek फ्रॉम T विल डिस्कनेक्ट अ ग्राफ। अगर मैं ये एज रिमूव कर देती हूँ, सपोज ये एज रिमूव कर दिया हमने, विल रिमूव दिस एज, ये एज रिमूव कर दिया तो ये G आइसोलेटेड हो जाएगा, G निकल जाएगा और बचा हुआ हिस्सा क्या रह जाएगा, इतना हिस्सा बचा हुआ रह जाएगा। तो ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड, ये ट्री डिस्कनेक्टेड हो गई, ट्री डिस्कनेक्ट हो गई, ये अलग हो गया G और ये अलग हो गया। सो T विल डिस्कनेक्ट द ग्राफ। ये T जो है वो ग्राफ को डिस्कनेक्ट कर देगा। दस T माइनस Ek, मतलब T में से एक एज निकाल दिया, इज नॉट कनेक्टेड, इज डिस्कनेक्टेड। अगर ट्री में से एक एज भी निकाल दिया, कोई भी एक एज निकाल देंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फॉर अदरवाइज द T विल नॉट बी कनेक्टेड, सो T कनेक्टेड नहीं रहेगा। अगर मैं इस ट्री की भी बात कर रही हूँ, चलो मैंने इस ट्री में से ये वाला एज रिमूव कर दिया, कोई भी एक एज, तो ये वाला जो नोड है ये अकेला रह जाएगा, बाकी के जो है वो एक अलग से ग्रुप बना लेंगे। तो ये फिर स्टिल जो है इट इज़ डिस्कनेक्टेड, ये डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब एक एज की वजह से ही वो कनेक्टेड है, ओके। Now let these two components of T minus Ek be T1 और T2। इनको दो कंपोनेंट को क्या नाम दिया हमने, एक को नाम दिया, इस कंपोनेंट को नाम दिया T1, पहले वाले कंपोनेंट को नाम दिया T1 और ये वाले कंपोनेंट को नाम दिया T2। चाहे ये वाला ट्री ले लेते हैं, चाहे ये वाला, इस कंपोनेंट को नाम दिया T2, इस कंपोनेंट को नाम दिया T1। दो कंपोनेंट्स में आ गए, कंपोनेंट्स में इसलिए आ गए क्योंकि ये अलग हो गया है, ओके। सो बाय रिमूवल ऑफ वन ऑफ द एज, लेट दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ T माइनस Ek बी T1 एंड T2। दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, T1 और T2 में। ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज अ ट्री बिकॉज देयर वर नो सर्किट्स इन T। T में कोई सर्किट दिख रहा है क्या, T में
ये एक कोई भी सर्किट नहीं दिख रहा, कोई लूप दिख रहा है नहीं, ट्री में कभी भी कोई भी लूप नहीं रहता, लूप रहता ही नहीं है ट्री में। ओके, सो ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज अ ट्री बिकॉज देयर वर नो सर्किट इन टी, सर्किट है ही नहीं टी ओरिजिन में। सो लेट n1 एंड n2 बी द नंबर ऑफ द वर्टाइसेस इन ट्री t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली। तो हमने इनको नाम दिया t1 और t2, तो इसमें नंबर ऑफ द वर्टाइसेस, लेट अस कंसिडर द नंबर ऑफ द वर्टाइसेस इन दिस केस इज n1। पहले वाले t1 में n1 नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, इसमें n2 नंबर ऑफ वर्टाइसेस है। सिमिलरली ये ट्री में n2 और नंबर ऑफ द वर्टाइसेस है, और इस वाले ट्री के कंपोनेंट में n1 नंबर ऑफ द वर्टाइसेस है। ओके, t1 ट्री है n1 वर्टाइसेस, t2 ट्री n2 वर्टाइसेस, t1 ट्री n1 वर्टाइसेस, t2 ट्री n2 वर्टाइसेस। ओके, जनरल नंबर दिया है। ओके, नाउ लेट्स सी बी द नंबर ऑफ द वर्टाइसेस इन t1 ट्री, t2 ट्री रिस्पेक्टिवली। Now since n1 is less than n and n2 is also less than n, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ द ट्री। इस ट्री के कितने वर्टाइसेस है? ये पूरी ट्री में हमने n लिखा था, तो दिस n1 is always less than n, this n2 is always less than n। n कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ n इज 7। अगर n1 की बात कर रही हूँ तो यहाँ 6 है, और n2 की वैल्यू 1 है, तो 1 इज ऑलवेज लेस देन दिस नंबर, n1 is always less than n। this is the total number of the vertices of a tree। इस ट्री के पूरे वर्टाइसेस कितने? n। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया एक एज निकालने के बाद, n1 वर्टाइसेस एंड n2 वर्टाइसेस ऑफ t2 ट्री एंड t1 ट्री। एक एज रिमूव करने के बाद में ये ट्री दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, t1 और ये t2 ट्री। जब पहले ट्री थी उसका नाम t था, जो पहले ट्री थी उसका नाम t था, उस ट्री में से एक एज रिमूव कर दिया, माइनस ई के एक एज रिमूव कर दिया, इस ई के एज कोई भी हो सकता है, ये वाला ई के एज रिमूव कर दिया। इस एज के रिमूव करने के बाद में ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, t1 और ये t2। ये जो t1 टी कंपोनेंट है इसमें n1 नंबर ऑफ द वर्टाइसेस है, ये t2 जो कंपोनेंट है इसमें n2 नंबर ऑफ द वर्टाइसेस है। सो ये ट्री जो है दो वर्टाइसेस में डिवाइड हो गया है। ये ट्री जो है वो दो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, तो t1 ट्री और t2 ट्री। t1 के अंदर n1 नंबर ऑफ वर्टाइसेस, t2 के अंदर n2 नंबर ऑफ द वर्टाइसेस, और टोटल नंबर ऑफ द वर्टाइसेस इन द ट्री इज n, एंड आफ्टर रिमूविंग t माइनस e के द नंबर ऑफ द वर्टाइसेस इज n1 इन t1 एंड n2 इन t2। ओके, अब जो ये n1 की वैल्यू है, दिस n1 इज ऑलवेज लेस देन n। Similarly, this n2 is always less than n because n is the total number of vertices of the tree, और n2 जब एक एज निकालने के बाद में बचा वो ट्री का नंबर ऑफ द वर्टाइसेस, और n1 always less than the total number of the vertices। so हमने लिखा n1 is less than n and n2 is less than n। we have by this hypothesis, induction hypothesis, the number of the edges in t1 is equal to n1 minus 1। हाइपोथेसिस हमने लिया था पहला वाला इंडक्शन में कि अगर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ द एजेस इज ऑलवेज 1 लेस देन t1 ट्री एंड नंबर ऑफ द एजेस इन t2 विल ऑलवेज बी n2 माइनस 1। ये देखो, ये हमने हाइपोथेसिस बोला है कि अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ द vertices है n equal to k, then the number of the edges will be k minus 1, अगर n k नंबर ऑफ द वर्टाइसेस है तो k माइनस 1 एजेस हैं। तो हमने बोला t1 ट्री में n1 माइनस 1 एजेस होंगे, t2 ट्री में n2 माइनस 1 एजेस होंगे। अब ये दोनों को मिला दिया अगर मैंने n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1, तो हमारे पास में n1 प्लस n2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू e माइनस 2। ये क्या हो गया हमारे पास में? e माइनस 2। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए? e माइनस 2,
जबकि हमारे पास में थ्योरम क्या थी, e-1 की थ्योरम. So here we have one edge less than the, here we have one edge, हर एक में एक एज लेस है, ये एक एज लेस है, यहाँ पर e-2 आया. e-2 आया मतलब एक जो एज था, ये एक एज हमने निकाल दिया था, ये वाला एज, ये एक एज निकाल दिया था. ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाला एज अगर ऐड कर देती हूँ, प्लस ई के का एज निकाल दिया था ना, ई के का एज एक ऐड कर दिया यहाँ पे. तो अब हमारे पास में कितना बचा, दिस इज इक्वल टू e-1 बचा. ये एक एज था, वो एक रिमूव हो गया था, जो हमने यहाँ पे रिमूव किया था, ये वाला एज, ये वाला एज रिमूव कर दिया था. तो ये एज जो रिमूव किया था इसको मैंने ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, e-1. दैट मीन्स दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर द ट्री हैविंग n नंबर ऑफ द वर्टाइसेस एंड n-1 एजेस. ओके, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है उसको. उसके बाद में जब उसको जोड़ा तो e-2 मतलब नंबर ऑफ द एजेस -2. एक एज हमारा रिमूव करने के बाद में ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, तो इसके अगर हम टोटल भी करेंगे तो e-2 हुआ. इसमें ये जो एज रिमूव किया था, ये वाला एज जो है वो ऐड किया, तो हमारे पास में e-1 आ गया. इसका मतलब अगर एक ट्री है, उसमें से एक भी एज रिमूव कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ द एजेस -2 हो जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू. तो ये एक एज ही रिस्पॉन्सिबल है उसको कनेक्ट करने के लिए. सो हेंस वी से दैट अ ट्री विद n वर्टाइसेस हैज़ n-1 एजेस. ये थ्योरम